ask. Any doubt? Speak up. No, ma'am. Okay. No, ma'am. तो जब तक हम क्लास स्टार्ट करते हैं एक बार मैं पिछला थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है? फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे. In the previous topic, we have discussed about the rate of reaction, average rate and instantaneous rate. Average rate का formula minus delta C over delta T, change in concentration over change in time, and instantaneous rate is minus dC over dt. It is for, it will take when the time period is very small, and it should be taken when the time period is very large. Today we will discuss relation between rate of reaction of various reagents, which I will start within 2 or 3 minutes. Dear students, make fair notes of all these topics. सर स्टार्ट करें हम? हेलो. हाँ जी सर, करें स्टार्ट? हाँ जी, एक थोड़ा मोबाइल को थोड़ा बिल्कुल वो करो ना, ब्लैक बोर्ड पे बिल्कुल हिल रहा है अभी. हाँ हाँ वो तो कर रहे हैं, मतलब मैं स्टार्ट करूं? हाँ बिल्कुल स्टार्ट करें मैम. Today our topic is relation between rate of reaction of various reagents. जो हमारा rate of reaction है उसके various reagents के साथ क्या relationship है? बच्चों मैं reagents की बात कर रही हूँ, reactant की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ reactant. आप please reagents में reactant और product दोनों आते हैं, so don't get confused with reagent with reactant. It includes both reactant as well as product. I will take this topic with this example. For example, nitrogen combines with hydrogen to form ammonia. Nitrogen hydrogen के साथ combine करके ammonia बना रहा है. First thing you should remember, you should first balance this equation. मैंने ये already balance लिखी हुई है, लेकिन अगर आपको question में equation balance नहीं है, so your first work is to balance that equation. What is the stoichiometric coefficient? Here 1, 3, 2, which means when the 1 mole of nitrogen combines with 3 moles of hydrogen, so 2 moles of ammonia will be produced. जब नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से कंबाइन करता है तो अमोनिया कितना बनता है? 2 मोल. Suppose हमने इस रिएक्शन को स्टार्ट करा इन अ रिएक्शन मिक्सचर. When the time is 15 seconds, 15 सेकंड के बाद नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्ट कर गया. 15 सेकंड के बाद मान लो नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्ट कर गया, तो आपको ये स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से पता चल जाएगा. यहाँ थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट भी लग रहा है. जब इसका 1 मोल अगर रिएक्ट कर गया तो इसका कितना मोल रिएक्ट किया होगा? 3 मोल. और इसके कितने मोल्स बने होंगे? 2 मोल्स. सो rate of disappearance of nitrogen is, हम इंस्टेंटेनियस रेट ही लेते हैं जनरली, इट्स माइनस डी N2 over dt, concentration of nitrogen with change in time. Suppose इसका rate of reaction अगर मैं लिख रही हूँ x, when the time period is second,
सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन इसका 3x हो जाएगा, क्योंकि ये स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हमें पता चल रहा है इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करता है, तो इट विल फॉर्म 3x। और इसके कितने मोल बनेंगे? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया इज d NH3 by dt, that should be equal to 2x। अच्छा, why negative sign? Because these are of reactants. Why positive sign? Because it is of product. So remember one thing, अगर आप इंडिविजुअल रेट लिख रहे हो इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन और डीकम्पोजिशन, अगर हम किसी भी चीज की अपीयरेंस या डिसअपियरेंस की बात कर रहे हैं, तो बच्चों आप यहाँ देखिए मैंने कोई भी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इंक्लूड नहीं करा, लेकिन अगर मुझे रेट ऑफ होल रिएक्शन निकालना है, somebody will ask calculate the rate of the whole reaction, पूरी रिएक्शन का रेट निकालो, तो हमें स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को इंक्लूड करना होता है। This is the main point which should be noted whenever you are calculating the individual rate of appearance or disappearance of any reagent, then stoichiometric coefficients will not be included. But whenever you are calculating the rate of overall reaction, then their stoichiometric coefficients should be included. ये जो हम आगे लिखते हैं ना, इन्हें बैलेंस करने के लिए, these are stoichiometric coefficients जो आप 11th में पढ़ चुके हैं। यहाँ तक क्लियर? अब रेट ऑफ होल रिएक्शन विल बी माइनस dN2 by dt डिवाइडेड में इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो कि मैंने किसके बराबर लिखा यहाँ पे, x। यहाँ माइनस d इज इक्वल टू माइनस dH2 by dt अपॉन में 3x, क्योंकि इसके 3 मोल कंज्यूम हो रहे हैं, इज इक्वल टू प्लस d अमोनिया की अपीयरेंस अपॉन में dt अपॉन में 2x। अब आप ये देख रहे हैं, ये x, 3x, 2x ये क्या है? ये इसके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं। इज इट क्लियर? In short, overall rate of this reaction is माइनस, ये 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, dN2 over dt that is equal to कितना स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है? -1/3, क्योंकि हमने डिवाइड किया था तो वो ऐसे आ जाएगा, disappearance of hydrogen over dt is equal to plus 1/2 dNH3 over dt. Is it clear? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, whenever you are calculating the overall rate, then their stoichiometric coefficients should be included. But whenever you're calculating the individual rate of appearance or disappearance of any reagent, then their stoichiometric coefficients should not be included. एक और एग्जाम्पल देख लीजिए आप। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा रिएक्टेंट है, इसके x मोल रिएक्ट करते हैं तो हमारा बनता है y moles of B. This is a general reaction. So can you write the rate of reaction in your notebooks? Overall rate of reaction, that will be equal to overall कितना आएगा? That is minus क्यों? Because I am taking the concentration of reactant, that is decreasing with the passage of time. That will be equal to 1/x dA over dt, which is further equal to 1/y with positive sign dB over dt. In the same question, if I am asking calculate the rate of disappearance of A, so how you will write this?
rate in terms of reactant, the rate of disappearance of A कितना हो जाएगा? It will be minus dA over dt. ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पे कोई भी stoichiometric coefficient इंक्लूड नहीं करा. Now we will discuss the numericals based on this topic because one question can become from this topic in the board exams. Please write down. This is the reaction. In this reaction, concentration of NO increases by, please note down in your notebooks, increases by 1.5 molar in 10 seconds. This is the question. Now calculate first part. Rate of reaction. B part, rate of disappearance of NH3 and O2. C part, rate of appearance of water. क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में? हमें एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है जिसमें हमें ये बता रखा है कि जो हमारा NO है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 सेकंड में इतनी हो रही है. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट विल बी द ओवरऑल रेट. सेकंड, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 and O2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2. फर्स्ट, सबसे पहले आप ये देखिए, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है? हमें क्वेश्चन में गिवन है इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है. क्या होगा इसके लिए? प्लस, क्योंकि ये रिएक्टिव प्रोडक्ट है, डी NO by dt. ये आपको कितना गिवन है? दैट विल बी 1.5. टाइम कितना है? 10 सेकेंड्स. तो सबसे पहले आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये? दैट कम्स आउट टू बी 0.15 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. ये तो हमारा हो गया इसकी कॉन्सेंट्रेशन. नाउ अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, दिस इज गिवन इन आवर क्वेश्चन. रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन को अगर हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? -1/4 of concentration of ammonia over dt is equal to -1/5 concentration of O2 over dt is equal to plus y plus, because it is of product, concentration of NO over dt is equal to
1/6 concentration of H2O over dt. First balance the equation, then ये हमें given है dNO by dt 1.5 over 10 because the time period is 10 seconds. ये हमारा निकल गया. अब हमें निकालना है rate of reaction. तो हम rate of reaction को कैसे निकाल सकते हैं? ये मैंने overall rate लिख दिया. उससे पहले मैं एक बार आपको rate of disappearance बता देती हूँ first. या आप यहां से देख लीजिए, अगर मैं इसको और इसको यूज कर रही हूं, सो इट विल बी -1/4 ऑफ, आप किसी को भी ले सकते हैं, आप इसको भी ले सकते हैं, पर मुझे ये गिवन है तो मुझे इसको तो लेना पड़ेगा, ओवर dt. इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू प्लस 1/4 dNO by dt. dNO by dt की वैल्यू मैंने कितनी कैलकुलेट करी है अभी? 0.15. मैं यहां से इस टर्म को काट सकती हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं, बिकॉज इट इज -1/4, इट इज 1/4. तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ गया? 0.15 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. यहाँ तक कोई डाउट? एक बार देख लीजिए मैंने क्या किया. रेट ऑफ रिएक्शन में ओवरऑल रेट लिखा, इनको इक्वलाइज करा. सिंपली आप कर सकते हैं. अगर आपसे इस क्वेश्चन में रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर पूछा हुआ है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 पूछा हुआ है, तो आप इसके रिस्पेक्ट में इसको कैलकुलेट कर सकते हो. मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी. आप किन्हीं भी दो रिलेशन को यूज कर सकते हो. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? सो ये जो बाकी के दो पार्ट्स हैं आप लोग इसे सॉल्व करेंगे. इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन प्लीज कॉन्टैक्ट विद मी. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. Nitrogen reacts with hydrogen to form ammonia. ठीक है? First balance it. It is already balanced. अब in this reaction, rate of formation of ammonia is 0.0017 kg per hour. Calculate the rate of reaction. क्या गिवन है क्वेश्चन में? प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया. आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया दे रखी है 0.0017 kg per hour. कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन. क्या करिए बच्चों? फर्स्ट आप रेट देखिए क्या होगा. क्या होगा? इट विल बी प्लस dN2 by dt, sorry, minus dN2 by dt, which is further equal to minus 1/3 dH2 by dt, which is further equal to plus 1/2 dNH3 by dt. हम किन्हीं दो को यूज कर सकते हैं, बट हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया गिवन है. It means this is given to us. So, but one thing you should be kept in mind. It is kg per hour. So you have to convert it into moles per hour. Can you think how you will convert it? First convert kg into grams. Then grams divided by molar mass is equal to number of moles.
कैसे, पहले हम इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं. 0.0017 should be multiplied by 1000 for converted into grams. For converted into number of moles, that is given mass upon में molar mass. So molar mass of ammonia is 17. 14 plus 3 into 1. So this comes out to be 0.1 moles. 0.1 moles per hour. ये तो हमने कन्वर्ट कर लिया kg per hour को moles per hour. Now moles is directly proportional to concentration. तो मैं डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकती हूँ. तो हम क्या लिखेंगे, देखिए आपको क्या गिवन है, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है. सो दैट विल बी इक्वल टू प्लस 1/2 d NH3 ओवर dt. ये हमने अभी सॉल्व करा. ये कितना है हमारा 1/2 इंटू में 0.1. That comes out to be 0.05 moles per hour. This is the rate of reaction. क्या था इस क्वेश्चन में, हमें अमोनिया की प्रोडक्शन दे रखी है जिसमें हमें कॉन्सेंट्रेशन रेट. क्या करें हम, रेट इज इक्वल टू minus dN2 by dt is equal to minus 1/3 dH2 by dt is equal to plus 1/2 dNH3 by dt. हमने सबसे पहले इस kg को ग्राम में कन्वर्ट किया, ग्राम को मोलर मास से डिवाइड करके उसके नंबर ऑफ मोल्स में, तो डायरेक्टली मैंने इस एक्सप्रेशन में पुट कर दी. इज इट क्लियर? Your next topic is law of mass action. This law was given by Gullberg and Waage. It will never be asked in CBSE exams. It's just for increasing your GK. This law was given by Gullberg and Waage. What this law states that the rate of a reaction is directly proportional to the product of active masses of reactants each raised to the powers equal to their stoichiometric coefficients. What he said, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारा एक्टिव मास each raised to the power equal to their stoichiometric coefficients. क्या मतलब है इसका, आप जनरल रिएक्शन लीजिए. फॉर एग्जाम्पल N1 moles of A combines with N1 moles of B, N2 moles of B to form N4 moles of D. It is a general reaction. तो ये क्या कह रहा है, जो हमारा रेट होगा
overall rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant. लिख दिया. Each raised to the power equal to their stoichiometric coefficients. मतलब जो ये आगे इनके coefficients लिखे हुए हैं उनकी पावर. और कौन सा रिएक्टेंट है? B raised to the power their stoichiometric coefficients. This is rate law और rate expression. अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम क्या लिखते हैं? रेट इज इक्वल टू के और बाकी ये सारा सेम. क्या कहा कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू द पावर इक्वल टू देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड दिस के इज रेट कांस्टेंट. And this is rate law और rate expression. इसे हम rate law भी बोलते हैं और rate expression भी बोलते हैं. And the case. मैम 4 मिनट रह गए हैं. शिखा मैम. जी. शिखा मैम. शिखा मैम. ठीक है सर. ठीक है सर. 2 minutes. हाँ, जो डाउट्स वगैरह बच्चों को वो कंफर्म करो. जब पढ़ेंगे तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा. इट इज डिफरेंट फॉर ऑल रिएक्शन. नेक्स्ट related to this topic I will discuss it on the next lecture. तब तक आप मेरे से आज के टॉपिक के डाउट्स ले सकते हैं. एनी डाउट from previous lecture or this lecture? Any student can speak up. Yes, ma'am. Speak up. Any doubt? सर अगर डाउट नहीं है तो मैं बता दूं इसके बारे में थोड़ा सा. Ma'am, will you please repeat the definition of law of mass action? सॉरी, एक बार दोबारा बोलिए. मैम एक बार आप लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन दोबारा समझा दो. ओके. द रेट ऑफ अ रिएक्शन, जो हमारा रेट ऑफ अ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. मान लो मैंने ये रिएक्शन ली A + B कंबाइंस टू फॉर्म C. इसके नंबर ऑफ मोल्स है X, इसके X2 और इसके X3. तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज A रेट टू द उनकी पावर को हम ऊपर ले जाएंगे, दैट विल बी X1 इनटू में इसमें दूसरा रिएक्टेंट कौन है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इनटू में X2. इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं कि दैट इज रेट कांस्टेंट. तो ये क्या कह रहा है, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस के इक्वल होता है. नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्टिव मासेस और इसके बारे में जो थोड़ा सा रह गया है पहले वो डिस्कस करूंगी तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी. नाउ इट इज क्लियर? यस मैम. Okay. This is the characteristics of chemical reaction. The value of K is different for every reaction. या आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये K बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा. Any other doubt? Okay, my dear students, today I will send the question based on rate of reaction. हाँ जी बोलिए. Any other doubt? एक्सक्यूज मी मैम, इस रेट कांस्टेंट का नेम कुछ नहीं है? नहीं, इसे हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं और इसको रेट लॉ और रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं. नहीं, इट्स कॉल्ड रेट. मैम एक्टिव मासेस और कंसंट्रेशन सेम होता है? सॉरी, एक्टिव एक्टिव मासेस और कंसंट्रेशन सेम होता है?
मन्नत, अगर हम सॉल्यूशन फेज की बात कर रहे हैं तो हम कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं एक्टिव मास को, मतलब मोलैरिटी। और अगर हम गैसियस फेज की बात कर रहे हैं तो हम मोलैरिटी भी ले सकते हैं और पार्शियल प्रेशर भी ले सकते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। एक्टिव मास को हम कॉन्सेंट्रेशन से रिलीज करते ओके मैम। हैं। सॉल्यूशन फेज में इट इज इक्वल टू मोलैरिटी, और अगर हम गैसियस फेज की बात करें तो आप मोलैरिटी भी ले सकते हैं, उसका पार्शियल प्रेशर ले सकते हैं। ठीक है मैम, दैट इज ऑल। एक बार